वेलकम वंस अगेन एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। हम लोगों ने कल 10 क्वेश्चंस कर लिए थे एंड टुडे वी विल डिस्कस फ्रॉम 11 नंबर क्वेश्चंस एंड दिस इज आल्सो पैराग्राफ रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। तो आप जानते हैं जो अपनी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की स्टाइल है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन द क्वेश्चंस एंड बाय एनालाइजिंग क्वेश्चंस वी हैव टू रीड द कॉम्प्रहेंशन। लेट्स स्टार्ट। In this question, the firstly we have to discuss about the options as well. Right now here, this is which one of the following statement best reflect the central idea. You know very well, central idea and crux, these are the measure and these are the very important factors. Mostly the questions are asked in crux and central idea. Let's start. India does not, firstly you have to study all the options only. Bus India does not have enough resources for promoting quality education in its universities. अब ये प्रथम दृष्टया ही देखिए क्या है, देखिए एक्सट्रीम आइडियाज को तुरंत अंडरलाइन मार। इंडिया डज नॉट हैव एनफ रिसोर्सेज फॉर प्रमोटिंग क्वालिटी। इंडिया डज नॉट हैव, पहला सेंटेंस जो आपका है यही बता दे रहा है कि यहां पे भी क्या बताओ, एक्सट्रीम आइडिया की शुरुआत हो गई है। एनीवेज फिलहाल अभी निर्णय नहीं ले सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल, शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। ये सेंटेंस भी देखिए एकदम, द इंस्टीट्यूशंस ऑफ द हायर लर्निंग इन द कंट्री शुड नॉट बी अंडर द कंट्रोल of the government. How can be this possible? All the universities, all the central units should be under control. Anyways, this is not logical. Let's start. Here also we have some extreme type of sentence like this, should not be under the control. Anyways, classroom approach to higher education should be done away with. Should be done away with. Okay, classrooms needs to be imagined and teaching needs to be reinvented. This is the option, and behalf of these options let's start about the studying the passage. And in passage, first of all we have to focus like this. Let's start. In our country, regrettably, teaching and learning for the examination have been our forte. बट 40 मीन्स क्या होता है, हमारी स्पेशलिटी होती है। यहाँ से लिखा भी गया हुआ, देखिए यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया है विशेषता, ठीक है, हैज बीन अवर 40। let's start. But the new demands of society and the future of work require critical and independent thinking, learning through doing, asking questions from multiple disciplinary perspective on the same issue, using evidence for building arguments and reflecting and articulation. Higher education should not आइदर बी मेयर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। देख लीजिए, आइदर मेयर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट, वो जहां कंट्राडिक्शन हो रहा था कि गवर्नमेंट की पूरी तरह से सिस्टम खत्म कर देना चाहिए, हाँ, मेयर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसी आर ए पैसिव रिस्पॉन्डेंट टू पब्लिक मूड। Higher learning is all about how to think rather than what to think. How to think rather than what to think. Teaching has to be reinvented. Okay, let's start. Now, based on this paragraph, we have to study the questions once again. Like the first question reflects about the central idea we have to focus right now here. India does not have enough resources. Does not have enough resources. यहाँ रिसोर्सेस के बारे में बात ही नहीं हो रही है। ये स्टेटमेंट आपका स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस अर्थात रिसोर्सेस की कमी के बारे में बात कर रहा है, जबकि पूरे पैराग्राफ में कहीं पर भी रिसोर्स के बारे में बात नहीं हुई। दूसरा, India does not have enough resources for promoting quality education in its universities. ये भी एक्सट्रीम है, आउट कर दीजिए। The institution of higher learning in the country should not be under the control should not, दो बार लिखा गया, हाँ इसलिए दिक्कत हो रही है। should not be under the control of the government। यहाँ देखिए, पढ़िए क्या लिखा है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, साफ साफ लिखा गया है, बहुत क्लियरली। क्या बताइए, यहाँ साफ लिखा गया है कि यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा कहाँ लिखा गया है, जहाँ लिखा गया है मेयर लिखा गया है, यहाँ देखिए लिखा गया क्या, हायर एजुकेशन शुड नॉट आइदर बी अ मेयर सर्वेंट ऑफ द गवर्नमेंट। शुड नॉट बी मेयर लिखा गया है, नॉट कंप्लीटली बोला नहीं गया है। दैट मीन्स ये सेंटेंस भी आपका आउट है, ये आपका स्टेटमेंट भी आपका आउट है। सी, क्लासरूम अप्रोच टू हायर एजुकेशन शुड बी डन अवे विथ। classroom approach to higher education should be done away with.
शुड बी डन अवे विथ। क्लासरूम के अप्रोच को खत्म करने की बात कहाँ हो रही है? साफ साफ देखिए, यहाँ साफ कहा गया था क्या, हायर एजुकेशन। हाँ, यहाँ देखिए क्या, हायर एजुकेशन लर्निंग इज ऑल अबाउट हाउ टू थिंक रादर देन व्हाट टू थिंक। टीचिंग हैज टू बी री इन्वेंटेड। टीचिंग को खत्म, वो क्लासरूम को खत्म नहीं करना बल्कि टीचिंग को री इन्वेंट करना है। लिहाजा ये भी आपका ऑप्शन आउट है। ऑप्शन नंबर डी अब नेचुरल से होना है। क्लासरूम नीड्स टू बी री इमेजिन एंड टीचिंग नीड्स टू बी री इन्वेंटेड। साफ साफ लास्ट लाइन को अगर आप देखेंगे, लास्ट लाइन के बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। इसका मतलब इसका आंसर कितना बताइए? डी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। एनीवेज, लेट्स गो अहेड। Now let's focus on the same passage, but this question number 12, and this question is considering as what reference to the above passage following assumption. Here also assumption. Anyways, ग्राफ तो हमको पैराग्राफ पढ़ लिया गया है, and now we have to only discuss about these two assumptions. The first is higher education is a constantly evolving subject that needs to be aligned towards new development in all spheres of society. Okay, in our country sufficient funds are not allocated for promoting higher education. ये तो बिल्कुल assumption out है, बिकॉज यहाँ पूरे स्टेटमेंट में फंड्स के बारे में कहीं फंड्स एलोकेशन के बारे में कोई बात ही नहीं हुई है। ये सेंटेंस एकदम आउट है। आप एक बार जरा इसको देखिए, ये जो सेंटेंस दिया गया है पहला वाला, फर्स्ट सेंटेंस is definitely corresponding its assumption from the paragraph, because एक वर्ड देखिए क्या लिखा बताइए, यहां देखिए क्या लिखा है, asking questions from multiple disciplinary perspective on the same issue। मल्टीपल डिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव का मतलब हुआ आप कई तरह के सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं। इस आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ जो आपका assumption है, हायर एजुकेशन इज ए constantly evolving subject that needs to align towards new developments in all spheres of the society। अब वहां जो है मल्टी डिसिप्लिनरी का संबंध यहाँ बताइए all spheres of society है। definitely this option or this statement number 1 is the correct assumption for that particular paragraph। anyways, let's move ahead। now we have to focus on next passage, and this is passage number 4, question number 13। Friends, first of all, we also have to go for the questions. Once again, we have not to change our philosophy of doing the paragraph. Let's start the questions। Which one of the following statement best reflect the crux of the passage? Crux आ ही गया है, crux तो आपका आ ही गया है, crux हो या central idea आपका आ गया है। Anyways, चलिए, there is an urgent need for a public policy to promote the consumption of cereal-based foods in wealthier societies। okay, animal based, next है animal based food is far less efficient than grain plant based food in terms of production and utilization। कोई आइडिया नहीं। plant based protein should replace the animal based protein in our daily diets। कोई आइडिया नहीं। inequality in food production and consumption is inevitably and in any fast changing society। inequality in food production and consumption is inevitably, ये सेंटेंस inevitably in any fast changing society। anyways, ऑप्शन नंबर डी की तरफ से हम लोग थोड़ा से आश्वस्त हो गए, ये नहीं होना है, क्योंकि जहां पर भी आप एक्सट्रीम आइडियाज की बात करेंगे वहां प्रॉब्लम आपका आएगी। देखिए, if there is inequality in the pattern of population growth, ध्यान दीजिएगा, if there is inequality in the pattern of population growth, there is greater inequality in food production and utilization। definitely, okay, as societies become wealthier, their consumption of animal products increases, their consumption of animal production increases। okay, this means that a greater proportion of such basic food stuffs as grains and legumes that could feed humans directly is instead being converted into feed for poultry and large farm animals। okay, आप सब समझ रहे हैं बात क्या हो रही है क्लियरली। जहां पर भी जो है, जब वेल्दियर सोसाइटी होती है तो वहां मीट ज्यादा खाने लगते हैं, तो जो मीट वाले पशु होते हैं उनको जो है खिलाने के लिए वही जो आपका ग्रेन्स वगैरह होते थे पशु खिलाते हैं। लेकिन इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है देखिए, येट
This conversion of plant-based food into animal food for humans is far from efficient. लैंग्वेज देखिएगा क्या लिखा है, फार फ्रॉम इफिशियंट, फार फ्रॉम इफिशियंट। दैट मीन्स जब यहां कन्वर्जन हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, देखो यहां साफ साफ लिखा गया, बताइए क्या, यहां साफ लिखा गया है कि जब ये येट दिस कन्वर्जन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड into animal food for human is far from efficient. Okay, only 16% of the calories fed to chickens are required by us when we eat them. Okay, this conversion rate goes down to 5 to 7% large animals that are fed grain to add fat and some protein before slaughter. Okay, समझ में मामला आ गया आपका। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, देखिए पहला we have to discuss about the cracks. There is an urgent need for a public policy to promote the consumption of cereal based foods in wealthier society. कहीं से कोई बात नहीं हुई है। वेल्दियर सोसाइटी का संबंध, ये एक जनरल कंसिडरेशन दिया गया है कि जब सोसाइटीज वेल्दियर होती हैं तो वहां पर जो है मीट का कंसिडरेशन बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए कोई पॉलिसी ला दिया जाए, ये सेंटेंस तो एकदम पूरी तरह से आउट है। आगे देखिए क्या है, एनिमल बेस्ड फूड इज फॉर लेस इफिशिएंट। ये देखिए सेंटेंस आपका आया हुआ था, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहां देखिए सेंटेंस आपका आया हुआ है क्या, देखिए येट दिस कन्वर्जन ऑफ प्लांट बेस्ड फूड इनटू एनिमल फूड फॉर ह्यूमंस इज फार फ्रॉम इफिशिएंट, फार फ्रॉम इफिशिएंट। ये लाइन अगर आपकी आई हुई है पढ़ लीजिए। तो अब देखिए इसके बाद क्या आता है, देखिए यहां आपका ऑप्शन नंबर बी लिखा है, एनिमल बेस्ड फूड इज फार लेस इफिशिएंट देन ग्रेन प्लांट बेस्ड फूड इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। बिल्कुल सही बात है, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन। आपने साफ साफ लिखा है कि 16% जो है कम, जो है 16% ही मीट में, सॉरी प्रोटीन मिल पाती है जब प्लांट्स जाता है फीड के लिए एनिमल्स में। एनीवेज, तो ये आपका सेंटेंस लगभग सही जा रहा है क्रक्स के बारे में। फिर भी और आगे देख लेते हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन शुड रिप्लेस द एनिमल बेस्ड प्रोटीन इन अवर डेली डाइट। ये कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं, फिर से वही मामला, शुड रिप्लेस, जहां पर भी पूरी तरह से कह रहे हैं, बताओ क्या, कि पूरी तरह से डाइट में पूरी तरह से जो एनिमल बेस्ड होते हैं हमको, ये बिल्कुल आउट है, ये तो बिल्कुल आउट है। द इनइक्वालिटी इन फूड प्रोडक्शन एंड कंजप्शन इज इनएविटेबली इन एनी फास्ट चेंजिंग सोसाइटी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ जाएं, फटाफट आगे बढ़ जाएं। उसके बाद देखिए, इसके बाद यही सेम पैसेज है और इस पैसेज पर क्या पूछा है क्वेश्चन, देखिए, विथ रेफरेंस टू द अबव पैसेज द फॉलोइंग assumptions have been made। अच्छा, ये क्वेश्चन भी assumption का है, तो पैराग्राफ तो आपने पढ़ लिया है, ये देखते हैं क्वेश्चन क्या है। पहला, द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन एवरी कंट्री। मैं तो बार बार बोलता हूं, आप लोग एक्सट्रीम वर्ड्स को पकड़िए, एक्सट्रीम वर्ड को पकड़िए। यहां पूरे सेंटेंस में आपने द फूड मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन एवरी कंट्री शुड अलाइन देयर ऑब्जेक्टिव एंड प्रोसेसेस इन अकॉर्डेंस विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटीज। ठीक है, ये बात सही है, बदलाव करिए, लेकिन एवरी कंट्री, दिस इज डेफिनेटली वंस अगेन, ये आपका क्या बताइए, इंपल्सिव सेंटेंस एकदम नहीं माना जाएगा। अगला, वेल्दियर सोसाइटी टेंड टू इनकर ग्रेट लॉस ऑफ कैलोरीज ऑफ फूड मटेरियल्स ड्यू टू इनडायरेक्ट यूटिलाइजेशन ऑफ देयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। एकदम सही लिखा गया, साफ साफ लिखा गया है कि एग्रीकल्चरल प्लांट की तुलना में जब हम मीट वाले फूड खाते हैं तो प्रोटीन की क्या बताओ कमी हो जाती है उनको खिलाने में, है ना। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये हम चारों क्वेश्चंस कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, अब जहां तक मुझको लगता है फिर से मैथ्स में आ जाएगा सवाल। हाँ, अब आपका क्वेश्चन आ गया, क्या बताइए, मैथ्स में आ गया। आइए अब क्वेश्चन लगाते हैं। ये पैराग्राफ रीडिंग पढ़ने के बाद हम लोग अब देखिए फटाफट क्वेश्चंस करने का प्रयास करते हैं। आइए एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए, मजा आपको आ जाए। अब जैसे देखिए, जो लोग पढ़े हुए हैं, हम फिर से कहेंगे, आप तुरंत क्या करिए, मैं जानता हूं थोड़ा सा पैराग्राफ रीडिंग हल्का से बोरिंग हो जाता है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। आप देखिए, आप यकीन मानिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 100 कर लेंगे, 100 क्वेश्चंस कर लेंगे तो ऑटोमेटिक आपको कुछ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। 200 करने के बाद आपके अंदर एकदम माहौल बन जाएगा। आइए जरा देखते हैं सवाल क्या लिखा है। क्या लिखा देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट इतना 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 इज डिविजिबल बाय 35 पावर n। मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप कॉपी खोलिए, जहां प्राइम नंबर पढ़ाया था मैंने
टू फाइंड दी नंबर ऑफ जीरोस के क्वेश्चन देखिए, आप दोनों तीनों जगह पे जहां जहां पढ़ाया हुआ हूं, प्राइम नंबर में जहां जीरोस हैं, जहां याद करिए, अगर ये वीडियो देख रहे हो, जिन बच्चों को याद आ रहा हो जल्दी बताएं मुझको, अंत में शून्य की संख्या का निर्धारण, नंबर ऑफ जीरोस एट द एंड ऑफ एक्सप्रेशन वाज डिटरमाइंड बाय 2 and 5। वहां नंबर ऑफ जीरोस निकालना था, यहां क्या है बताइए, यहां निकालना है, यहां नंबर ऑफ जीरोस ने 35 है। अब अगर ये 35 है तो कहानी देखो कुछ ऐसे बन रही, देखिए 7 इंटू 343 इंटू बताइए क्या 385 ओके इंटू 1000 ओके इंटू 2401 इंटू 7777 2 2 4 1 5 5 बार है, डिवाइड बाई कितना बताइए, यहां है 35 पावर n। फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह मालूम है, दिस 35 पावर n कैन बी रिटन एज 5 इंटू 7 पावर n। अब देखिए, अब जैसा ये तो है नहीं कि हर बात सेम आएगी, वहां आप जो है याद करिए, ऐसा एक क्वेश्चन कराया भी गया है, वहां 10 पावर n से डिवाइड किया था, तो वहां पूछा गया था n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और आई थिंक यहां भी क्या पूछा बताओ, मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछा गया है। हाँ, आइए जरा इस क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करते हैं, जरा देखिए कैसे करते हैं। ये बताइए, नीचे 5 और 7 आ गया है, कह दीजिए हाँ। अब यहां अगर 5 और 7 आ गया है तो आपसे पूछा गया है कि n की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, कह दीजिए हाँ। तो n की मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, चलते हैं। देखिए ये बताओ, ये 7 है, ये 343 है, सब जानते हैं 7 का क्यूब आपका होता है 343। 385 में अगर मैं 7 से भाग कर दूं तो 7 इंटू कितना बताइए, यहां होगा 7 इंटू कितना बताओ, 7 पचे 35 है ना, 5 हो गया और 3 38, ये 55 हो गया। चलो देखते हैं, 1000 का मतलब आप सब जानते हैं कि यहां 25 का पहाड़ा 125 अट्ठे होता है, अर्थात ये हो गया 5 का क्यूब इंटू कितना बताओ 2 क्यूब। अरे यार 1000 लिखा गया है, 1000 को आप क्या करिए, 2 से फिर 5 करिएगा, यही आएगा। 2401 क्या होता है बताओ, हम लोग तो चूंकि याद है, तो इसमें अगर आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, अर्थात ये आपका 7 पावर 4 आएगा। देख लो, 7 त्रिक 21 की 1 हासिल 2, 7 चौक 28, 2 30 0 हासिल 2 और 3, और 7 त्रिक 21 3 24 है ना। ये बताओ ये क्या है, 7 इंटू 1 1 1 1 1 है ना। अब करना क्या आपको है, करना क्या है, जितने 7 आए सबकी पावर ले लो। यहां 7 एक पावर में है, यहां 3 3 1 4 हो गया, 4 1 कितना बताओ 5, और 5 4 कितना बताइए 9, और 9 1 कितना बताओ 10। अब देखो ऊपर तुम्हारा 7 पावर 10 है, इंटू 5 देखो कहां आया 55 में भी तुम्हारा 5 इंटू 11 है। हमें फोकस केवल 5 और 7 पे करना है बस केवल। अब बताइए, एक 5 यहां आ गया, कह दो हाँ, 3 5 यहां आ गए, बोल दीजिए हाँ। तो ये बताइए कितने हो गए, बताइए 5 यहां आपका कितना बताओ हो गया 4 टाइम्स हो गया। अब बताइए यहां आपका बताओ क्या है, 5 इंटू कितना बताओ 7 पावर कितना बताओ n है। अब एक कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं चाहूं इसको लिखना, मैं इसको जनरली मैंने पढ़ाया तो आपको ये था कि याद करो, मिनिमम पावर ऑफ 2 and 5 डिसाइड अबाउट द नंबर ऑफ जीरो। सिमिलरली यहां जो मिनिमम पावर होगी, मैं अगर चाहूं तो 7 पावर 10 को क्या 7 पावर 4 इंटू 5 पावर 4 इंटू यहां 7 पावर 4 लिखे हो, 10 लाना है तो यहां 7 पावर 6 हो गया। अब आप बताइए खुद, यहां 5 इंटू कितना बताओ 7 पावर n हो गया। अब यहां भी 4 है, यहां भी 4 है, अगर मैं चाहूं इसको रफली बताइए तो क्या ये 5 इंटू 7 पावर कितना बताओ 4 इंटू कितना बताओ 7 पावर 6 डिवाइड बाई 5 इंटू कितना बताओ 7 पावर n। आप खुद दिमाग लगाइए, अगर ये वैल्यू काटेंगे तो क्या n की वैल्यू 4 होना चाहिए। वैसे तरीका इतना लंबा मत करिए, आप जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस में मिनिमम पावर ऑफ 5 and 7 2 and 5 डिसाइड अबाउट द वैल्यू, राइट। इसका आंसर कितना बताओ 4 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। आइए देखते हैं क्या है मैथ्स में। हाँ,
आपको जो है बताऊं मैं आपको, ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये सीरीज का क्वेश्चन रीजनिंग। आप सब लोग चाहे अनअकैडमी वाले हों, चाहे ध्येय वाले हों, चाहे समर्पण आईएएस वाले हों, अपनी कॉपी में चेक करिएगा जहां नंबर सीरीज पढ़ाया है, नंबर सीरीज के शायद चौथे या पांचवें टाइप में यही सेम क्वेश्चन कराया गया है। न यकीन है, चेक कर लीजिए, वही सेम क्वेश्चन है। अब यहां देखो 12 से 18 हुआ है, 18 से 36 हुआ है, और 36 दूनी 72, 18 90। आप साफ देख रहे हैं 12 6 18 है ना, तो 12 का आधा देखिए, गौर कीजिए कैसे निकल रहा है। देखिए 24 के बाद क्या हुआ, देखिए कैसे घट रहा है। देखो 12 से 18 कैसे होगा बताइए। ये अगर 12 का 1.5 से गुणा कर दें तो 12 डेढ़े 18 होता है, 18 दूनी 36, यहां 2 हो गया, 36 दूनी 72, 18 90, अर्थात यहां 2.5 हो गया। यही क्वेश्चन है, मैं याद कर रहा हूं, मुझे याद आ रहा है, 0.5 बढ़ा था। अब बताइए 2.5 2 1.5, इससे 1 कम कर दीजिए, अर्थात यहां 1 होगा, यहां कितना बताओ 0.5 होना चाहिए। तो 24 का 0.5 मतलब होता है हाफ, 24 का हाफ कितना होगा बताओ, 12 हो जाएगा, और 12 इंटू 1 कितना बताओ, 12 हो जाएगा। तो यानी ये पूरी सीरीज क्या बताओ, 0.5 फिर 1 फिर 1.5 1 पॉइंट, अरे 2 2.5। मैं फिर कह रहा हूं, काफी चेक कर लो, को समय कराया हुआ है, मुझे अच्छी तरह याद आ रहा है। तो इसका उत्तर कितना बताओ, डेफिनेटली बताइए, क्या आप बताइए। 24 का जब ये क्वेश्चन हटेगा तो 24 में देख लीजिए 1.5 फिर 2 फिर 2.5, तो 1.5 का आधा, यहाँ 1, यहाँ मिसप्रिंट कहीं कहीं कर दिया इन्होंने इसमें। इसका उत्तर कितना बताओ, 12 आना चाहिए, यहाँ मिसप्रिंट है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्या देखिए अगला क्वेश्चन आपका, अगला क्वेश्चन आपका क्या बताइए, अगला क्वेश्चन आपका बताइए क्या आएगा, बोलिए। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने क्वेश्चन आपका आ चुका है, जरा एक बार इसको पढ़ लीजिए, बताइए क्या लिखा है, पढ़िए देखिएगा। ये क्वेश्चन मुझे अच्छी तरह से याद है, नंबर सीरीज मैंने कराया था, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए कुछ इस तरह से है, पढ़ लीजिए कि P and Q walks along a circular track. They start at 5 a.m. From the same point in opposite direction. P walks at an average speed of 5 round per hour. ठीक है। And Q walks at an average speed of 3 round per hour. How many times will they क्रॉस ईच अदर बिटवीन 5:20 AM से 7 AM के बीच में? तो पहले ये बताओ 5:20 से 7 AM के बीच में व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ टाइम। तो 5:20 से 40 और 60 और 40 कितना बताइए। अरे यार 5:20 से 40 मिनट बाद 6 बज जाएगा, 6 7, अर्थात कितना बताओ 60 घंटे उधर। यानी ये मामला आपका 100 मिनट का मामला होगा। आपसे पूछा गया है कि इस 100 मिनट में वे एक दूसरे कितनी बार क्रॉस करेंगे। अब यहां भी सुन लीजिए, आप तुरंत कॉपी खोलिए, टाइम एंड स्पीड का डिस्टेंस चैप्टर खोलिए, वहां मैंने ही आपको रिलेटिव स्पीड सापेक्ष चाल का चैप्टर पढ़ाया है। वहां मैंने ही सवाल लगवाया था, एक सर्कुलर पाथ था, वहां के क्वेश्चन में क्या था बताइए, चेक कर लो कॉपी। वहां ये चला था 4 किलोमीटर पर आवर से, वहां ये चला था 6 किलोमीटर पर आवर से। अब आप बताइए यहां क्या हो रहा है। देखिए यहां कह रहे हैं, सवाल की लैंग्वेज बदली, बिल्कुल हुबहू ही सवाल है। याद करिए टाइम इक्वल्स टू, जरा एक बार जितने बच्चे इसको देखेंगे मुझसे पढ़े होंगे तो जरूर टाइम बराबर D/S जरूर लिखेंगे, टाइम बराबर D/S जरूर लिखेंगे, चाहे वो जिस मीडियम के होंगे। अब यहां देखिए इसकी जो स्पीड है, क्या P वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5। अब देखो P जो आपका है, P की स्पीड 5 राउंड पर मिनट, 5 राउंड पर आवर है। आप बताइए स्पीड क्या होती है। स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, है ना। तो अगर 5 राउंड ले रहा है 1 घंटे में, तो मैंने कहा बताइए P की स्पीड कितना बताओ 5 है, और Q की स्पीड कितना 3 राउंड है। तो Q की जो स्पीड कितना बताइए, जो Q की स्पीड आएगी, देखिए कितना आएगी, वो Q की स्पीड जो आएगी वो कितना बताइए। देखिए हम इसको मिटा दे रहे हैं अच्छे से। हाँ P कितना बताइए 5 हो गया, और Q कितना बताइए बोलिए, ये 3 हो गया। राउंड हुआ, राउंड का मतलब होता है एक राउंड का मतलब जहां ये मिलेंगे। अब जरा याद करो और बताइए आप लोग कहां मिलेंगे। ये अगर यहां से चल रहे हैं तो बीचों बीच ये X है, ये Y है और ये Z है।
अगर अभी आप लोग लाइव क्लास लेते हैं तो मैं सबसे पूछता, ये बताओ कहाँ मिलेंगे, यही पढ़ाया था आपको मैंने, ये बीचों बीच होगा तो यहाँ तो नहीं मिलेंगे, इसकी स्पीड ज़्यादा है तो ये बताओ इसका मतलब यहाँ मिलेंगे। अब आप बताइए, जितनी देर में ये बंदा यहाँ से यहाँ आया उतनी ही देर में ये बंदा यहाँ से आया, इसका मतलब क्या हुआ, एक मीटिंग में एक राउंड का डिस्टेंस कंप्लीट हो रहा है। बस सवाल हो गया। अब आपको याद होगा रिलेटिव स्पीड में साफ साफ बताया था, अरे भैया खोलो कॉपी फटाफट, साफ पढ़ाया था, अगर दोनों बॉडीज अपोजिट चल रही हैं, ऐसे देखो अपोजिट जा रही हैं, ऐसे ऐसे जा रही हैं, तो वहां स्पीड जुड़ती है। अब मैंने क्या पढ़ा, टाइम बराबर d/s। तो ये बताओ डिस्टेंस एक राउंड है, स्पीड क्या है बताओ, रिलेटिव है, सापेक्ष अपोजिट है, इसका मतलब ये 5 प्लस कितना बताओ 3, अर्थात ये 1/8 क्या है, ये आवर है। अब आप जानते हैं इसको बदलना है कहां बताओ, मिनट में, तो 1/8 इंटू कितना बताओ 60 मिनट हो जाएगा। अब इसको काट दो, 4 दूनी 8, यहां काट दो कितना बताओ 15। अब ये 15/2 आया। अच्छा बताओ ये 15/2 क्या है, पहले बताओ ये 15/2 क्या है, एक राउंड को कवर करने में लगने वाला टाइम है। अब अपने आप बताओ तुम लोग क्लियरली सोच करके, 15/2 मिनट। अब देखो सवाल क्या है, देखो 15/2 मिनट का समय लेते हैं कहां बताइए, एक राउंड में, बोलो हाँ। अब बताइए एक मिनट में कितना होगा, तो आप जानते हैं 1/, उल्टा हो जाएगा ये, अर्थात ये हो जाएगा 2/ कितना बताओ 15 राउंड। हमें कितना समय चाहिए 100 मिनट का, अरे यार 5 20 7 में, तो बताइए बहुत व्यवहारिक ज्ञान बताओ, 100 मिनट का मतलब हुआ 2/15 गुणे कितना बताइए बोलिए 100। अब 5 काट दो, 5 आई 15, 20 पंचे 100, 20 दूनी 40, बेटा ये तो 40 में 3 से भाग करोगे तो ये 13 होल इज टू 1/3, अर्थात इतने राउंड जाएगा। तो आप बताओ इसमें होल वैल्यू कितना बताओ 13 है, इसका मतलब क्या बताइए, इसका मतलब ये हुआ इसका आंसर कितना बताओ 13 राउंड आएगा, है ना, इसका उत्तर 13 राउंड आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत शानदार सवाल है। अब आपसे मैं चैलेंजेबल कह रहा हूं, ये इसका उत्तर 13 आ रहा, देखो ये इसका उत्तर 13 आएगा, ठीक है। मैं आपको चैलेंजेबल कह रहा हूं, आप कॉपी खोलिए टाइम एंड डिस्टेंस में, जहां आपको रिलेटिव स्पीड पढ़ाया गया है। मेरे ख्याल से सापेक्ष चाल में दूसरा क्वेश्चन मैंने बोल के करवाया था, ये आपको बताया है, ठीक। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन आपका कुछ इस तरह से है, ये सवाल आपका है रीजनिंग मॉडल का सवाल। देखिए क्या लिखा है, पढ़िए, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एकदम एंजॉय करते हुए पढ़िए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बताइए क्या लिखा है। इफ P रिप्रेजेंट प्लस, Q माइनस को शो करे, R किसको बताओ मल्टीप्लाई को, S डिवीजन को शो करे, तो पूछा गया है प्रॉपर नोटेशन बिटवीन द सक्सेसिव नंबर्स इन द इक्वेशन। यहां इक्वेशन देखो क्या है, 60 यहां गायब है, 15 गायब है, 3 गायब है, 20 फिर से गायब है, 4 इज इक्वल्स टू कितना बताओ 20 लिखा गया है, ये मिस प्रिंट है, यहाँ बस केवल 20 है, बस केवल, ठीक है। चलिए यहाँ देखो हिंदी वाले में नहीं है, ठीक है। अब यार पूछा गया है कि इसमें कौन सा स्थान पे कौन कौन अंक आ सकते हैं, तो यहाँ अब ये तो कोई मैथ्स मीनिंग नहीं है, यहाँ सीधे आप ऑप्शंस लिखिए, इन चारों में से जो ऑप्शन इसको मैच करा देगा, इसकी वैल्यू 20, जो ऑप्शन इसकी वैल्यू 20 कर देगा, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड बताओ क्या बोलो बराबर हो गया, वही इसका आंसर मान लिया जाएगा, ठीक है। आइए पहले चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1। अगर मैं 1 चेक करता हूं, ऑप्शन नंबर कौन सा बताओ बोलो, ए, हाँ ए वाला। एस, तो 60 डैश के स्थान पे आपने एस माना, तो अगर मैं यहां एस मानूंगा साथियों, तो एस का मतलब क्या होता है बताइए, भाग, तो ये होगा 60 डिवाइड बाई 15। फिर उसके बाद क्या बताइए, यहां लिखा है पी, लिखा है पी, पी क्या होता है बताइए प्लस, फिर यहां लगाओ प्लस कितना बता बोलो 3, फिर उसके बाद यहां आर है, आर बोले तो कितना बताइए बोलिए, यहां है गुणा, इनटू कर दिया, किसको बताओ बोलो 20 है, ठीक है। फिर है उसके बाद क्या बताओ क्यू, क्यू का मतलब बताओ क्या होता है बोलो माइनस, अर्थात ये -4। अगर ये वैल्यू आपकी 20 के बराबर आ जाएगी तो यही आंसर माना जाएगा। अब ये सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट है, बॉड मास पढ़ा होगा आप लोगों ने। बताइए पहले बताओ डिवीजन की, पहले मल्टीप्लाई पहले डिवीजन, 15 से डिवीजन किया 4 आएगा,
और उसके बाद 20 तिहाई कितना बताओ 60, 4 + 60 -4, 4 कट जाएगा, यहाँ 60 आएगा, यहाँ 20 लाना है, आपका पहला ऑप्शन नहीं होगा। चलो कोई बात नहीं, पहला ऑप्शन अगर नहीं हुआ इसका मतलब हम दूसरा चेक करते हैं, है ना। आइए दूसरा चेक करते हैं, क्या है देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए, हाँ कहानी क्या देखो पूरी 60। अब यहां देखो पहले लेना है क्यू, क्यू बोले तो कौन सा बोलिए, ये -60 - 15। फिर उसके बाद बताओ क्या, क्यू के बाद लेना है आर, आर बताओ कहाँ है, इंटू कितना बताओ 3। फिर वहां लेना बताओ क्या, बोलो पी लेना है, पी, पी बोले तो क्या बताइए, पी बोले तो प्लस कितना बताओ 20। फिर उसके बाद बताओ क्या लेना है, एस, एस मतलब डिवाइड, अर्थात कितना बताओ डिवाइड बाई 4। और उसको चेक कर लेते हैं, पहले डिवीजन 4 से काट दिया, यहाँ बताओ 5 आएगा, फिर मल्टीप्लाई 15 3 45, 60 -45 + 5, 60 में 45 निकाल दो 15, अब +5 = कितना बताओ 20। ये 20 इस 20 के बराबर है, 100% ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर कितना बताओ, बी मार दीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल संख्या नेक्स्ट क्या है बताइए, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए, क्या लिखा है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, गौर से पढ़िएगा क्या लिखा है, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए क्या लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। A tram overtakes two persons X and Y walking at an average speed of 3 kmph and बताइए क्या बोलिए 3 kmph and बताइए क्या बोलिए 3 kmph and 4 kmph in the same direction। बस कहानी खत्म। जैसे दोनों पर्सन्स की डायरेक्शन सेम हो गई, इसका मतलब मैंने आपको रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट पढ़ाया है, याद करो। अपोजिट में ऐड किया था, सेम डायरेक्शन में क्या बता बोलो, सब्ट्रैक्ट हो जाता है, मैंने रटवाया हुआ है आपको। हाँ, एंड कंप्लीटली पासेस इन 8 सेकेंड्स एंड कितना बताओ 9 सेकेंड्स। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रैम, ट्रैम। अब यहां देखो, यहां ट्रेन न पूछ करके ट्रैम पूछ लिया गया है। अरे कुछ नहीं है, ये सवाल पढ़ाया गया आपको, मुझे याद करो। मैंने आपको ट्रेन वाले क्वेश्चन में एस टी इंटू, याद करो, एल टी इजिकल्स टू कितना, सॉरी एस टी इंटू टी बराबर एल टी वाला कॉन्सेप्ट था। एक काम करिए, देखो ये एक कहानी ऐसी है, देखिए यहां एक पर्सन है, इसकी स्पीड कितना दिया, देखिए इसकी स्पीड दिया कितना बताइए, इसकी स्पीड दिया कितना बताइए 3 kmph, और दूसरा पर्सन सेम ऐसे जा रहा है, इसकी स्पीड कितना बताइए दिया है, बोलिए यहां दिया बताओ क्या 4 kmph। फिर क्या बोल रहा है बताइए, फिर कह रहा है कि ये बंदे को एक ट्रैम ऐसे क्रॉस कर गया, फटाफट ट्रैम यहां से क्रॉस किया। अब देखो जब ये क्रॉस कर रहा है, ध्यान समझिएगा आप लोग, जब ये इसको हाँ ओवरटेक किया, यहां देखिए ओवरटेक किया है। अब आप जानते हैं ओवरटेक आगे से नहीं करते हैं, पीछे से करते हैं ओवरटेक, ठीक है। आइए देखते हैं, इसको क्रॉस किया कितना बताओ 8 सेकेंड में क्रॉस किया है, और इसको क्रॉस किया कितना बताओ ट्रैम ने, कितना बताओ 9 सेकेंड्स में क्रॉस किया है। जल्दी से अब इसका उत्तर आप लगाएंगे, मैं इसका उत्तर नहीं बताने वाला आपको, जरा बताइए कैसे किया जाए। आप बताइए, अगर मैं मान लेता हूं, बताओ क्या ट्रैम जो आपका है, इसकी स्पीड को अगर मैं x मान लूं, तो आप बताओ इसकी डायरेक्शन सेम है, तो आप बताओ क्या पढ़ाया था, स्पीड इंटू टाइम इक्वल्स टू क्या होता बताओ डिस्टेंस। अब देखो ट्रैम की जो लेंथ यहां होगी वही ट्रैम की लेंथ यहां होगी, अर्थात यहां डिस्टेंस सेम कर दो। स्पीड कितना हो बताओ, ये हो गया x - 3 इंटू कितना बताओ, ये हो गया, अरे यार स्पीड हो गई ये, भैया मेरे क्या पढ़ाया था, जब बॉडी सेम डायरेक्शन में होती है तो चाल क्या होती है, घट जाती है। ये दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड। अब बताइए x - 3 इंटू कितना बताओ 8 इक्वल्स टू, यहां बताओ क्या होगी x - 4 इंटू कितना बताइए, बोलिए 9। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं सर आपने x से क्यों घटाया है, तो जब ये क्रॉस कर रहा है इसका मतलब इसकी स्पीड ज्यादा होगी। अब आप इसको हल करते हैं, देखो ये हुआ 8x - 24 इक्वल्स टू 9x - 36। फ्रेंड्स ये इधर जाएगा, 9x में से 8s निकाल दीजिए, दिस इज x इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो 36 में 24 निकाल दो 12, अर्थात जो ट्रैम की जो आप बताओ स्पीड है वो
12 किलोमीटर पर आवर है। अब इसमें से किसी में भी अगर आप वैल्यू कर देंगे, यहां रख दो, तो ये बताओ क्या होगा। देखो देखो ये क्या बन गया, ये बना लो फर्स्ट क्लास का, वही क्या बताओ, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू कितना बताओ, डिस्टेंस का फंडा यूज करो। यहाँ स्पीड कितना है बताओ, 12 - 3, तो ये 9 किलोमीटर पर आवर हुआ। और आप जानते हैं, रटवाया है मैंने, किलोमीटर पर आवर को 9 × 5/18 करना पड़ता था, याद करो, याद आ रहा है। 9 × 5/18 इज इक्वल टू कितना बताओ, डिस्टेंस या उसकी लेंथ होती है 9, कहीं कुछ गड़बड़, हाँ गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है, इस टाइम ने लिखा है, इनटू कितना बताओ टाइम, टाइम कितना है 8 इज इक्वल टू कितना बताओ डिस्टेंस, 9 × 2 = 2 4 और 5 4 = 20, अर्थात डिस्टेंस कहो या लेंथ कहो 20 की 20 मीटर। देखो ऑप्शन में 20 मीटर है, 100% 20 मीटर इज द करेक्ट आंसर। ये दोनों क्वेश्चंस आप देखिए, चेक कर लीजिए, कॉपी चेक कर लीजिए, कॉपी चेक कर लीजिए, मैंने करवाया हुआ है। हाँ, इसका एक्सटेंशन भी करवाया था, जहां याद करो एक पुल यहां था, एक पुल यहां था, एक ट्रेन आई और साइंस क्रॉस कर गई थी, मैंने करवाया है, मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या देखिए, कॉपी खोल देखिए आप लोग, वहां पढ़ा है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या लिखा है। कैसे कहते हैं कि नहीं, वो कैसे कह सकते, हम आपको दिखा रहे हैं ईमानदारी से, 2 4 10 लोग जो भी समझदारी से काम कर रहे हो, कॉपी में कितने क्वेश्चंस मैच कर रहे हैं देखिएगा। और से n² बराबर दिया है, देखो क्या यार, ये क्वेश्चन कैसे कह रहे हैं 1n², मैं मुझे याद है, ये भी सुनो कहां कराया है, आप अपनी नोट्स में रियल नंबर में इरेशनल नंबर खोल लीजिए, मैंने वहां पढ़ाया है इसको, जहां याद करो 11 का स्क्वायर 1 to 1। अब बताओ 1 to 1, मैं इस तरह डायलॉग मारा हूं, एवरी राइज हैज ए फॉल, चेन एनालिसिस, 1 to 1, 2 बार 1 था, 1 to 1, 11 का और 111 का स्क्वायर 3 बार 1 था, तो 1 2 3 2 1। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर वाली जब पढ़ाया था, वहां ये क्वेश्चन करवाया गया है। फिर 1 अगर 4 बार आएगा, इसका स्क्वायर क्या होगा, 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1। रिजल्ट जितनी बार यहां 1 आएगा, यहां टॉप 1 से वहां तक जाएगा और फिर वहां से 1 तक घटेगा। आप बताओ इस क्वेश्चन में अगर n² की वैल्यू ये है, तो ये बताओ यहां से n बराबर क्या होगा, बोलो तो अंडर रूट, बताओ क्या, शुरू हो जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 7 6, इसका मैक्सिमम मान कितना बताओ, 9 है। तो अब बताओ अगर 11 का स्क्वायर 121 है, तो क्या 121 का वर्गमूल 11 होगा, बोलो हाँ। तो जब 2 था तो 2 बार बनाया था, अब यहां ऐसे 3 रहेगा तो इसका मान 3 बार बनाएगा। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालूंगा 4 रहेगा, 4 बार बनाएगा। अब तुम बताओ यहां मैक्सिमम वैल्यू 9 है, 9 8 7 9 1 तक, 100% इसमें 1 1 1 1 1 1 9 बार आएगा। आप बताइए इसका मतलब क्या हुआ, बोलिए कितने अंक होंगे, 9 अंक होंगे। एकदम सिंपल सा सवाल है, चेक कर लीजिए। ये क्वेश्चन का बेस भी मैंने आपको बाकायदे वो रेशनल और इरेशनल नंबर को पढ़ाने के बाद जब क्वेश्चन कराया था, तो वहां करवाया हुआ है, कॉपी खोल देखिए इसको बाकायदे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, एक और चीज, जिनके जिनके क्वेश्चन मिल जाए, आपसे भाई साहब रिक्वेस्ट है कि उसको यार कमेंट बॉक्स में लिखो, थोड़ा हम भी चौड़ा हो जाए, है ना। ठीक, थैंक यू।